آج کی ویڈیو پر ہم نے بہت محنت کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی ذہین اور امیر بن جائیں جتنے دنیا میں صرف چند لوگ ہی ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو کا موضوع ہماری دوسری ویڈیو سے مختلف ہے۔ آج ہم ریاضی کے وہ راز جانیں گے جو کتابوں میں نہیں مگر زندگی میں کام آتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ ریاضی کا اصل مقصد نمبر گننا نہیں بلکہ زندگی جیتنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کمپاؤنڈ انٹرسٹ صرف بینکوں کے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ رسک لینے والے ہمیشہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ کم وقت میں کم محنت سے اتنا آگے کیسے نکل جاتے ہیں؟ یہ سب ریاضی کے وہ خفیہ راز ہیں جو کتابوں میں نہیں مگر دنیا کے سب سے کامیاب دماغوں کے فیصلوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ ہم آپ کو 15 ایسے راز بتانے جا رہے ہیں جس میں ہر راز ایک دروازہ ہے جو آپ کی سوچ کے نئے کمرے کھولے گا۔ آپ کو کچھ رٹنا نہیں پڑے گا، بس ہر راز کو محسوس کیجئے جیسے آپ کوئی خفیہ نقشہ پڑھ رہے ہوں جو آپ کو اس دنیا کے قانون کامیابی تک لے جا رہا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ چلیے راز نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کمپاؤنڈ گروتھ۔ منافع پر منافع دینے لگے۔ پاکستان میں اکثر لوگ صرف اتنا سوچتے ہیں آج کتنا کمایا، لیکن ذہین لوگ ایک مختلف سوال کرتے ہیں، میرے آج کے روپے نے میرے کل کے لیے کیا کام کیا؟ یہی ہے کمپاؤنڈ گروتھ، یعنی جب آپ کا سرمایہ صرف ایک بار نہیں بار بار بڑھتا ہے اور ہر بار اس بڑھوتری پر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 10,000 روپے ماہانہ ایسی جگہ لگائے جہاں ہر سال 10% واپسی ہو تو صرف 10 سال بعد وہ رقم 20 لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ریاضی کا وہ راز ہے جس سے بینک، انشورنس کمپنیاں اور امیر کاروباری حضرات روز استعمال کرتے ہیں اور عوام اسے غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ اسلامی مالیات میں بھی کمپاؤنڈ گروتھ کا تصور موجود ہے، لیکن وہاں اسے مضاربہ، شراکت داری یا منافع میں اضافے کے انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ بغیر جسمانی محنت کے مستقبل محفوظ ہو، وہاں کمپاؤنڈ گروتھ آپ کا خاموش شریک کار بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جلد شروع کریں، مستقل مزاجی سے چلیں اور صبر کے ساتھ وقت کو اپنا دوست بنا لیں۔ یاد رکھیں، پیسہ جو آپ خرچ کر دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پیسہ جو کمپاؤنڈ گروتھ میں ڈال دیا جائے وہ نسلوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ نمبر 2، امکانات، پروبیبلٹی۔ کامیابی اندھوں کی طرح نہیں، حساب کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہم فیصلے اکثر جذبات، مشوروں یا تقدیر کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن ذہین لوگ احتمالات کی آنکھ سے فیصلے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جاب بدلیں یا کاروبار شروع کریں تو آپ میں سے اکثر صرف دل کیا کہہ رہا ہے پر عمل کرتے ہیں، لیکن پروبیبلٹی آپ سے پوچھتی ہے اس فیصلے کے کامیاب ہونے کا امکان کیا ہے؟ کتنے فیصد لوگ اس میں کامیاب ہوئے؟ کیا آپ کے حالات ان کامیاب لوگوں جیسے ہیں؟ فرض کریں 2 کاروبار ہیں، ایک فاسٹ فوڈ فرینچائز، ایک نئی ایپ سٹارٹ اپ۔ اب ذہن کہے گا ایپ میں نفع زیادہ ہے، مگر پروبیبلٹی کہتی ہے 99% پاکستانی سٹارٹ اپ ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ فرینچائز کی کامیابی 70% ہے۔ اب فیصلہ جذبات سے نہیں، اعداد سے ہوگا۔ یہی طریقہ ذہین اور کامیاب لوگ اپناتے ہیں، چاہے وہ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہوں، کسی پروجیکٹ کا رسک ماپ رہے ہوں، یا رشتے، تعلیمی شعبے یا ملک چھوڑنے جیسے فیصلے۔ پروبیبلٹی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوگا، یہ بتاتی ہے کہ کیا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیسے تیار رہنا ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اندازہ، تیاری اور حکمت آپ کے ہاتھ میں۔ نمبر 3، گیم تھیوری۔ فیصلہ صرف اپنی چال سے نہیں ہوتا، دوسروں کی ممکنہ چالوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मुकाबला सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि दफ्तरों, कारोबारों, सियासत और रिश्तों में भी होता है, वहां सिर्फ अपनी हिकमत अमली काफी नहीं होती। गेम थ्योरी हमें सिखाती है आपका बेहतरीन फैसला वो नहीं जो आपके लिए अच्छा हो, बल्कि वो है जो दूसरों के मुमकिन फैसलों को समझ कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप कारोबार में कीमत कम करना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ ये सोचा मेरी कीमत कम होगी तो ग्राहक आएगा, तो ये आधा तज्जिया है। मगर गेम थ्योरी पूछती है अगर आपने कीमत कम की तो आपका मुकाबल कौन सा जवाब देगा? वो भी कीमत कम करेगा या आपके ग्राहक को कोई और राय देगा? और अगर सब कीमतें गिरा दें तो क्या मार्केट तबाह नहीं हो जाएगी? यही खेल पाकिस्तान की सियासत में भी जारी है। एक पार्टी जलसा रखती है, दूसरी उसी दिन जलसा रख लेती है। कोई सब्सिडी देती है, दूसरी उसका सियासी फायदा लेने की चाल चलती है। कोई इत्तेहादी बनता है तो दूसरा नाराज होकर नई गठजोड़ करता है। यानी यहाँ हर चाल तनहा चाल नहीं होती, वो एक रद्द अमल पैदा करती है। गेम थ्योरी आपको खुद से बाहर आकर सोचना सिखाती है कि अगला बंदा क्या करेगा और उसके जवाब में आपको क्या करना चाहिए। याद रखें, जो सिर्फ अपनी चाल सोचता है वो एक कदम आगे होता है, जो सबकी चालें सोचता है वो हमेशा 3 कदम आगे होता है। नंबर 4, रेशोज और तनासब। अददी मुआजना बताता है कि असल कदर क्या है। अक्सर पाकिस्तानी जब चीजें खरीदते हैं या फैसला करते हैं तो सिर्फ कीमत देखते हैं। ये चीज 200 रुपए की है, वो 300 की, सस्ती वाली ले लेते हैं। लेकिन ज़हीन लोग कीमत नहीं तनासब देखते हैं। रेशोज हमें सिखाते हैं कि हर चीज की असल कदर उसकी कीमत में नहीं, उसके बदले मिलने वाले फायदे में है। मसलन आपके पास 2 ऑफर्स हैं। एक मोबाइल कंपनी देती है 10 GB इंटरनेट 100 रुपए में, दूसरी देती है 25 GB इंटरनेट 250 रुपए में। आम जहन कहेगा पहली वाली सस्ती है, लेकिन रेशो बताता है पहली ऑफर में 10 रुपए बराबर है GB1, दूसरी में 10 रुपए बराबर है GB1, तो दोनों बराबर हुई। अब फैसला दीगर अवामल से होगा, जैसे नेटवर्क की रफ्तार। इसी तरह रेशो सिर्फ खरीदारी में नहीं बल्कि बिजनेस, तालीम, कारकर्दगी और सेहत में भी काम आते हैं। फी मुलाजम कितना काम हो रहा है, फी दिन कितनी पैदावार, फी महीना किस चीज पर कितना खर्च, हर 10 रुपए में कितनी खुशी या फायदा। ये सब फैसले बगैर तनासब के सिर्फ अंदाजे बन जाते हैं। याद रखें, रेशोज वो अदसा है जो हर फैसले की धुंध साफ करता है और आपको असल कदर दिखाता है, ना कि सिर्फ कीमत। नंबर 5, मौके की कीमत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप मुंतखब नहीं करते वही अक्सर सबसे कीमती होता है। पाकिस्तानी मुआशरे में अक्सर हम फैसले यूं करते हैं, यही बेहतर लग रहा है बस कर लो। लेकिन ज़हीन लोग हर फैसला करते वक्त ये सोचते हैं अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं क्या नहीं कर रहा, और वो ना करने की कीमत क्या है। यही है मौके की कीमत। यानी आप जो चीज चुनते हैं उसके बदले में जो कुछ हो बैठते हैं वही असल लागत है। मिसाल के तौर पर अगर आपने शाम 6 से 9 बजे तक ड्रामा देखा तो आपने शायद उस वक्त में एक हुनर सीखने, अजाफी कमाने या किताब पढ़ने का मौका गंवा दिया। अगर आपने बचत की बजाय गैर जरूरी किस्तों पर खरीदारी की तो आपने मुस्तकबिल की सरमायाकारी खो दी। कारोबारी दुनिया में एक शख्स अगर कम मुनाफे वाले प्रोजेक्ट पर वक्त लगाता है तो वो उस दौरान ज्यादा नफे वाला मौका खो रहा होता है। एक स्टूडेंट अगर सिर्फ पास होने की तैयारी करता है तो वो असल सीखने की कीमत चुका रहा होता है बगैर जाने हुए। मौका की कीमत नजर नहीं आती, लेकिन जिंदगी के हर कदम पर अदा हो रही होती है। ज़हीन लोग हर इंतखाब से पहले पूछते हैं अगर मैं ये करता हूं तो क्या कुछ छूट रहा है, और वो छूटने वाली चीज कहीं ज्यादा कीमती तो नहीं। याद रखें, जिंदगी सिर्फ उन चीजों से नहीं बनती जो हम करते हैं, बल्कि उन चीजों से भी जो हम छोड़ देते हैं, अक्सर लाशौरी तौर पर। नंबर 6, लेवरेज, कम मेहनत से ज्यादा नतीजा हासिल करने का फन। लेवरेज मतलब है किसी और चीज, वक्त, आदमी या निजाम को इस्तेमाल करके वो काम करवाना जो अकेले आपके बस का ना हो।
पाकिस्तान में अक्सर लोग मेहनत को ही सब कुछ मानते हैं। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कमाओगे, लेकिन ज़हीन लोग लेवरेज सीखते हैं, यानी मैं अकेला ना करूं बल्कि किसी चीज को इस्तेमाल करके दुगना 3 गुना नतीजा हासिल करूं। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी का लेवरेज। एक दुकानदार दिन में 20 ग्राहकों को सर्व कर सकता है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट हजारों को बगैर जिस्मानी थकन के। टीम का लेवरेज। अगर आप हर काम खुद करते हैं तो आपकी हद आप हैं। अगर आपने काम तकसीम किया तो आपकी हद पूरी टीम है। सरमाए का लेवरेज। आपके पास 1 लाख है, लेकिन अगर आप इस पर किसी से सरमाया कारी करवाएं तो आप 5 लाख का काम भी शुरू कर सकते हैं। इल्म का लेवरेज। आपने जो 5 साल में सीखा वो अगर किसी की किताब या कोर्स में 5 दिन में सीख लिया तो आपने वक्त का लेवरेज इस्तेमाल किया। ज़हीन लोग खुद को थका कर ताकतवर नहीं बनते, वो लेवरेज के जरिए खुद को बढ़ा लेते हैं। याद रखें, मेहनत जरूरी है, मगर ज़हीन मेहनत वही है जो आपको दूसरों के मुकाबले में कम वक्त में आगे ले जाए, और यही फन है लेवरेज। नंबर 7, पैसे की वक्ती कदर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का रुपया कल के रुपए से ज्यादा कीमती होता है। फर्ज करें आपको 2 ऑफर्स मिलती हैं, आज 1000 रुपए कैश या 1000 रुपए 1 साल बाद। आम आदमी शायद बोले एक ही बात है, मगर रियाजी कहती है नहीं, एक जैसी हरगिज नहीं। आज का 1000 रुपया आप आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, कमाना शुरू कर सकते हैं, जबकि 1 साल बाद के 1000 रुपए अपनी कुव्वत खरीद खो चुके होंगे, महंगाई बढ़ चुकी होगी, मौके जाया हो चुके होंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, करेंसी की कदर घटती जा रही है, सरमायाकारी के मौके वक्त के साथ बदलते रहते हैं, वहां पैसे की टाइमिंग बहुत मानी रखती है। आज के 100 रुपए में जो चीज आती है वो शायद अगले साल 130 की हो, तो आपका कल का 100 रुपए दरअसल आज का 77 रुपए है। इसलिए बैंक, कारोबारी इदारे और मालियाती माहिरीन हर चीज को डिस्काउंट करके देखते हैं, यानी मुस्तकबिल के पैसे को आज के हिसाब से गिनते हैं। याद रखें, पैसा सिर्फ गिना नहीं जाता, वक्त के साथ तोला जाता है, और जो वक्त के हिसाब से फैसले करे वो माली गुलामी से निकलकर आजादी हासिल करता है। नंबर 8, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। शुरू में आहिस्ता, बाद में धमाकेदार तरक्की। पाकिस्तानी मुआशरे में अक्सर लोग वही काम पसंद करते हैं जिसका फायदा फौरन नजर आए। आज कोशिश करें, कल नतीजा मिले। आज पैसा लगाएं, कल मुनाफा आ जाए। आज वर्जिश करें, कल ही जिस्म फिट हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि असल कामयाबी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से आती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है शुरुआत में तरक्की सुस्त, गैर महसूस या मायूस कुन लगती है, मगर एक खास मकाम के बाद तरक्की अचानक तेज और धमाका खेज हो जाती है। एक मिसाल देखते हैं। आपने कारोबार शुरू किया, 6 महीने कोई गाहक नहीं, 7वें महीने 2 गाहक, 8वें महीने में 4, 9वें में 10, और फिर अचानक 12वें महीने में 100 गाहक रोजाना। इसी तरह बचत या सरमायाकारी, सोशल मीडिया पर एक ब्रांड, तालीम और हुनर सीखना, यहाँ तक के ताल्लुकात, सब एक्सपोनेंशियल होते हैं। शुरू में प्लांट लगाते हो, फल वक्त देता है, मगर चूंकि हम फौरी नताज के आदी हैं, हम बीज बोते ही खोद कर देखने लगते हैं कि कुछ उगा या नहीं, और यही गलती हमें नाकामी का एहसास देकर दरमियान में रोक देती है। याद रखें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पहले 90% हिस्से में कुछ खास नजर नहीं आता, मगर आखिरी 10% में पूरी दुनिया बदल सकती है अगर आप रुके ना हों। नंबर 9, रिस्क बमुकाबला इनाम। रिस्क वाज रिवार्ड। हर रिस्क फायदा नहीं देता, असल चीज है सही रिस्क और सही वक्त। पाकिस्तानी मुआशरे में रिस्क को या तो मुकम्मल तौर पर बुरा समझा जाता है, भाई सेफ खेले, या हद से ज्यादा बहादुरी समझकर अंधों की तरह उठा लिया जाता है, किस्मत आजमाते हैं। लेकिन ज़हीन लोग रिस्क को ना तोलने वाला खतरा नहीं बल्कि नापा तोला सौदा समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 5 लाख रुपए लगाकर एक नया कारोबार शुरू करता है, लेकिन उसने मार्केट रिसर्च नहीं की, टीम नहीं बनाई, लागत का हिसाब नहीं लगाया। ये रिस्क नहीं, ये जुआ है। दूसरी तरफ कोई शख्स कम मुनाफे पर लेकिन अच्छी जगह, सस्ते किराए और मुतवक्को ग्राहकों के साथ छोटा सा स्टार्टअप शुरू करता है। ये रिस्क भी है, मगर समझदार और हिसाब शुदा।
इस तरह स्टॉक मार्केट में ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करना, दोस्त के कहने पर जमीन खरीद लेना, कर्ज लेकर गैर यकीनी बिजनेस में घुस जाना, ये सब हाई रिस्क जरूर होते हैं, मगर इनमें समझदारी का अंसर कम होता है। ज़हीन लोग हर रिस्क से पहले ये सवाल करते हैं, अगर सब कुछ गलत हो गया तो नुकसान कितना है, अगर सब कुछ सही हो गया तो इनाम क्या है, क्या मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ? यही मुवाजना रिस्क वाज रिवार्ड है और यही असल फहम है। याद रखें, कामयाबी का दरवाजा अक्सर रिस्क के पीछे होता है, लेकिन वही लोग उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जो हिसाब के साथ चाबी घुमाते हैं, आंख बंद करके नहीं। नंबर 10, मेंटल मैथ, जहन का कैलकुलेटर, फौरी फैसले, खुद इत्मीदी और धोखे से तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान में अक्सर लोग हिसाब किताब से घबराते हैं। बाजार में जाएं तो कहते हैं भाई जितने का हुआ बस बता दो। बैंक मोबाइल पैकेजेस या सौदों में बैठकर दूसरों की रियाजी पर भरोसा कर लेते हैं और अक्सर धोखा भी खा जाते हैं। लेकिन ज़हीन लोग ऐसा नहीं करते, वो रियाजी दान नहीं होते, बस उनके पास होता है ज़हनी कैलकुलेटर यानी मेंटल मैथ। मसलन दुकानदार कहे एक चीज 240 रुपए में 3 ले तो 700 रुपए, तो दिमाग फौरन बोलेगा 240 ضرب 3 बराबर 720, तो ये 20 रुपए रायत है या धोखा। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 12% सालाना मुनाफा, जहन फौरन अंदाजा लगा लेता है, यानी हर महीने तकरीबन 1%, 10,000 रुपए पर 100 रुपए का मुनाफा। कोई ऑफर देता है बाय वन गेट 50% ऑफ ऑन सेकंड, आप फौरन हिसाब लगा लेते हैं कि दरअसल ये 25% औसत रियायत है। ये हिसाब छोटा लगता है, मगर यही छोटे फैसले बड़े पैसे, वक्त और एतमाद बचाते हैं। मेंटल मैथ का मतलब है रोजमर्रा जिंदगी में इतनी महारत हो जाए कि कोई भी आपको कीमत, मिकदार या फीसद में घुमा न सके। याद रखें, जो खुद से हिसाब नहीं लगा सकता वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चलता है, और जो दूसरों के हिसाब पर चलता है वो खुद कभी अपने फैसले का मालिक नहीं बन पाता। नंबर 11, फैसला जाती दरख्त, डिसीजन ट्रीज। अगर ये हो तो वो, हर शाख का नतीजा जानकर फैसला करना। जिंदगी एक शाखदार दरख्त की तरह है, हर फैसला एक शाख है जिससे कई नई शाखें निकलती हैं। ज़हीन लोग ये दरख्त कागज पर बना लेते हैं या कम से कम दिमाग में वाजे कर लेते हैं। यही है डिसीजन ट्री थिंकिंग। फर्ज करें आप सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करें या नहीं। आम ज़हन सिर्फ 2 जुमले सोचेगा, क्या पता कामयाब हो जाऊं, क्या पता सब खत्म हो जाए। लेकिन फैसला जाती दरख्त आपको सिखाता है, जैसे शाख नंबर 1 नौकरी छोड़ें, कामयाब हो जाएं, ज्यादा आमदनी ज्यादा आजादी, नाकाम हो जाएं, बेरोजगारी माली दबाव। शाख नंबर 2 नौकरी ना छोड़ें, मौजूदा आमदनी कम खतरा, कारोबार का ख्वाब अधूरा। फिर आप हर शाख के इम्कानात, प्रोबेबिलिटी और नताइज, आउटकम्स का जायजा लेते हैं। शायद नौकरी छोड़ने की कामयाबी का इम्कान 40% हो मगर मुनाफा ज्यादा हो, जबकि नौकरी में सुकून हो मगर तरक्की महदूद। इसी असूल को कारोबार, तालीम, रिश्तों, सरमायाकारी, हर बड़े फैसले पर लगाएं। नतीजा आपके फैसले अंदाजे नहीं, नक्शे पर चलने वाले सफर बन जाते हैं। याद रखें, अंधेरे में कूदना बहादुरी नहीं, दरख्त की हर शाख देखकर सही समत जाना असल जहानत है। नंबर 12, मार्जिनल थिंकिंग, थोड़ा सा इजाफा, वक्त के साथ बड़ा फर्क। पाकिस्तान में कामयाबी के ख्वाब अक्सर बड़े फैसलों, इनकलाबी तब्दीलियों या एक ही वार में सब कुछ बदलने की उम्मीद से जुड़े होते हैं, मगर ज़हीन लोग जानते हैं कि कामयाबी का सफर छोटे छोटे मार्जिनल कदमों से बनता है। मार्जिनल थिंकिंग का मतलब है ये सोचना कि अगर मैं किसी चीज में 1%, 5% या सिर्फ थोड़ा सा इजाफा या बेहतरी लाऊं तो वक्त के साथ क्या फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, आप रोज 20 मिनट इजाफी पढ़ाई करते हैं, एक साल में 120 घंटे बराबर एक नई महारत। आप महीने में सिर्फ 1,000 रुपए इजाफी बचाते हैं, 5 साल में 60,000 रुपए मुनाफा। आप रोजाना बस एक गाहक ज्यादा खुश करते हैं, एक साल में +300 गाहक बराबर इत्माद, मुनाफा, शोहरत। ये सब तब्दीलियां छोटी लगती हैं, मगर मार्जिनल फायदे वक्त के साथ एक्सपोनेंशियल नताइज में बदल जाते हैं। यही हिकमत बिजनेस में भी कारआमद है। प्रोडक्ट में मामूली बेहतरी,
अमले की थोड़ी सी ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस में मामूली नरमी, ये सब चीजें आपके कारोबार को दूसरों से अलग कर सकती हैं। याद रखें, बड़े इनकलाब छोटे फैसलों के जमा होने से आते हैं। मार्जिनल थिंकिंग वो आदत है जो कामयाबी को खामोशी से करीब लाती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। नंबर 13, ब्रेक इवन पॉइंट, वो मकाम जहां लागत वापस आती है और मुनाफे का आगाज होता है। फर्ज करें आपने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। दुकान का किराया 30,000 रुपए, बिजली, अमला, स्टॉक, दीगर खर्चे 70,000 रुपए, यानी माहाना कुल लागत 1 लाख रुपए। अब सवाल ये कि कितनी सेल पर आपको कुछ नहीं हो रहा, ना नफा ना नुकसान वाली पोजीशन मिलेगी। यही है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप हर चीज पर 20% मुनाफा कमाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तकसीम 0.2% करें तो 5 लाख रुपए की सेल चाहिए, ताकि तमाम अखराजात पूरे हो जाएं और उसके बाद ही असल मुनाफा शुरू हो। यही असूल छोटे दुकानदारों, यूट्यूबर्स, ऑनलाइन ट्यूटर्स, फ्रीलांसर्स सब के लिए है। वीडियो बनाने में वक्त, एडिटिंग, बिजली, इंटरनेट बराबर है लागत। जब तक इतने क्लाइंट्स, व्यूज या ऑर्डर्स ना आए कि लागत वापस ना हो, तब तक आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ब्रेक इवन जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप जल्दी मायूस ना हो, टारगेट सेल या वैल्यू पर फोकस रखें, ये समझ सकें कि मुनाफा कब से शुरू होता है और क्यों अभी नहीं हो रहा। याद रखें, जब तक ब्रेक इवन पॉइंट का हिसाब नहीं, तब तक बिजनेस अंधेरे में चलता है और अंधेरे में चलने वाले अक्सर दीवार से टकरा जाते हैं। नंबर 14, शुमारियाती सोच, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। अदाद की जबान समझो ताकि अदाद में छुपा फ्रेब पहचान सको। पाकिस्तानी मीडिया, इश्तहारात, सोशल मीडिया और हत्ता के तालीमी अदारों में भी हमें रोजाना अदाद शुमार पेश किए जाते हैं। 95% लोग इस प्रोडक्ट से मुतमिन हैं। हमारे स्कूल के रिजल्ट 100% आए, 40% नौजवान बेरोजगार हैं, मगर इनमें से अक्सर दावे सिर्फ असर डालने के लिए होते हैं, हकीकत दिखाने के लिए नहीं। यही वो मकाम है जहां शुमारियाती सोच, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग काम आती है। ये सोच हमें सिखाती है कि सैंपल साइज क्या है। 95% मुतमिन लोग कौन थे? सिर्फ 20 लोगों से पूछा या 2000 से? मतवस्त एवरेज का मतलब क्या है? अगर 5 लोग हैं, 4 की आमदनी 20,000 और एक की 5 लाख, तो औसत आमदनी 1 लाख से जायद होगी। मगर क्या ये असल तस्वीर दिखा रही है? रेशो या तनासब किस बुनियाद पर है? क्या 40% बेरोजगार सिर्फ शहरी नौजवान हैं या पूरे मुल्क के? यही सोच आपको ड्रामाई अदादोशुमार की चमक से बचाती है और आपको असल हकीकत, असल मसला और असल मौका समझने में मदद देती है। कारोबार, तालीम, सेहत, हुकूमत, हर जगह अदाद का राज है, लेकिन जो इनका मतलब नहीं समझता वो तासर के हाथों बासानी बहक सकता है। याद रखें, रियाजी झूठ नहीं बोलती, मगर लोग रियाजी से झूठ को खूबसूरत बनाकर बोलते हैं। और जो शुमारियाती सोच रखता है वो इस खूबसूरती के पीछे छुपी हकीकत देख लेता है। नंबर 15, सिस्टम्स थिंकिंग। अकाई को नहीं, निजाम को देखो, असल मसला और उसकी जड़ तलाश करो। पाकिस्तान में जब कोई मसला होता है, महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, तालीम की कमी, तो हम फौरी रद्द अमल देते हैं। यह हुकूमत की नाकामी है, ये बंदा ही खराब है, उस्ताद अच्छा नहीं इसलिए बच्चा फेल हो गया। लेकिन सिस्टम थिंकिंग हमें सिखाती है कि एक फर्द, एक अदारा या एक लम्हा ही सब कुछ नहीं होता। हर चीज एक निजाम, सिस्टम का हिस्सा है। ये सोच पूछती है, ये मसला बार बार क्यों आता है? क्या वजह सिर्फ जाहिरी है या पीछे कई छुपी वजूहात हैं? क्या मसला हल करने से निजाम बेहतर होगा या वही मसला नई शक्ल में वापस आएगा? मसलन, अगर एक तालिब इल्म हर साल फेल हो रहा है तो क्या मसला सिर्फ उसमें है या निजाम तालीम में, घर का माहौल, स्कूल की पॉलिसी और उस्ताद की तरबियत भी शामिल है? अगर कारोबार में सेल नहीं हो रही तो सिर्फ प्राइस या प्रोडक्ट नहीं, मार्केटिंग, मकाम, सीजन, मुकाबला और कस्टमर नफ्सियात भी अवामल हो सकते हैं। सिस्टम थिंकिंग हमें सिखाती है कि मसला की सतह पर नहीं, जड़ पर काम करो। हर अमल का रद्द अमल होता है, पूरे निजाम में तब्दीली लाओ। चीजों को अलग अलग नहीं, मरबूत तरीके से देखो। ये वो सोच है जो इंजीनियरिंग, पॉलिसी साजी, तालीम, तिब, कारोबार, हत्ता के रिश्तों में भी इनकलाबी फर्क लाती है।
याद रखें, ज़हीन लोग मसला नहीं पूछते, वो निजाम को देखते हैं, और जो निजाम को समझ ले वो सिर्फ मसला नहीं पूरा मंजरनामा बदल सकता है। पाकिस्तान में अक्सर तलबा रियाजी से डरते हैं जैसे ये कोई सजा हो। वालिदैन कहते हैं पास हो जाओ, नंबर ले आओ, आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं बताता कि रियाजी का असल तोहफा नंबर नहीं, नजरिया है। रियाजी आपको सिखाती है हर मसले को मरहलावार सोचना, जज्बात नहीं मंतक की बुनियाद पर फैसला करना, किसी भी पेचीदा सूरत हाल को छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना, मफरूजे बनाना, डाटा जमा करना और नतीजा निकालना। और सबसे बढ़कर अगर एक तरीका नाकाम हो जाए तो दूसरा रास्ता तलाश करना। यानी रियाजी आपको सिर्फ नंबर गिनना नहीं सिखाती, बल्कि जिंदगी के हर चैलेंज को हल करने का दिमाग देती है। यही वजह है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग, चाहे वो इंजीनियर हों, कारोबारी या फिलासफर, किसी न किसी अंदाज में रियाजियाती सोच रखते हैं। याद रखें, रियाजी वो जिम है जहां जहन को तरबियत दी जाती है, और जिसका जहन तरबियत याफ्ता हो वो सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी हिसाब किताब का माहिर बन जाता है। रियाजी के ये 15 राज आपके लिए सरमाया है। इनको इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को तरक्की करते हुए देखें। हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि नौजवान तरक्की करें। आप तरक्की करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें यस मी टू, और याद रखिए कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।